हमारे हैंड में पढ़ाई करना, वी कैन ट्राई टू स्टडी नेक्स्टली एंड पढ़ाई करना हमारे हाथ में. सेकंड थिंग इज वी हैव गॉट लॉट ऑफ टाइम compared to last year. We started your 12th syllabus very early. आयुषी को पता होगा. और we started 11th syllabus when in जुलाई में शायद स्टार्ट किया था हमने, राइट आयुषी? I don't know, sir. I joined late. अच्छा, और लेट आएगा. स्टार्टेड इन जुलाई 11th का सिलेबस. तो now we have been studying for almost 2 months. Already we are quite ahead in that sense. And तो एडवांटेज है हमारे पास. एंड लेट्स सी हाउ द सिचुएशन इज फर्दर ahead. काफी सारा अनसर्टेनिटी है बट टेंशन लेने की बात नहीं है. ठीक है, ये सब था. ओके, तो थोड़ा पढ़ाई करते हैं. लेट अस बिगिन. पढ़ेंगे सब लोग? यस, हमेशा रिया वैशी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. हर वीडियो ऑफ कर दिया ताकि आप फोकस कर सकते. So last class we were studying about galvanometer and ammeter. How to construct a galvanometer, how to construct an ammeter. ये सब पढ़ रहे थे हम लोग. ठीक है. So these are the notes for last class. Okay. ये last class का notes ही है, उसे भी continue करेंगे. So we studied about this measuring instruments. We saw what is a galvanometer. Galvanometer is a current measuring device. जिससे current measure करता है. Then we saw how the galvanometer functions. Resistance of galvanometer, current through galvanometer, full scale deflection current, ये सब पढ़ा था. Then we saw about ammeter, how to construct an ammeter from galvanometer. ठीक है. In that we saw that we apply a resistance in parallel, shunt resistance. ठीक है. And similarly we have our voltmeter. तो voltmeter में हम लोग एक resistance series में लगाते हैं. ठीक है. तो ये सब चीज़ था. All right. And then we saw कि कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट एंड वोल्टमीटर वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हाउ टू मेजर. सो ऑल दिस थिंग्स इज. ठीक है. एंड आई टोल्ड कि वी शुड सॉल्व ऐसे ना, एवरीवन शुड सॉल्व. पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगा आगे. सो लेट अस बिगिन टुडेज क्लास. टुडेज डेट इज 7th जुलाई 2020. अच्छा डेट है आज का, 7/7/2020. So today's class is going to be very important. बहुत important क्लास है आज का. ठीक है. हर क्लास इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स का, बट आज का स्पेशल इंपॉर्टेंट है. बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ अब तक जो हमने पढ़ा. करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी स्टडीड अबाउट सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल. देन वी स्टडीड किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ऑल दिस डिफरेंट थिंग्स वी स्टडीड. सो बेसिकली ये सब पहले से आता था थोड़ा बहुत. वी हैड एन आइडिया. क्लास 9-10 में पढ़ा होगा होपफुली. बट नाउ जो भी पढ़ने वाले दैट इज थोड़ा नया है. ठीक है. सो थोड़ा ध्यान से देख सकते हो. कंप्यूटर आगे. All right. So let us begin. So first is we'll be studying about इसका तो पढ़ेगा. चलो जगह हुए है ना. कौन कौन है क्लास में? Everyone is there? ऐश्वर्या, Yes. वंश भी आ गए क्या? ओके. विजय से हम कुछ कुछ पूछेंगे तो जगह रहना पड़ेगा आपको. चलो. So first is
Wheatstone bridge. So let me draw the figure first. अच्छा पूरा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ मैंने ओके so this type of connection is called a Wheatstone bridge. In which you have various resistances in connection like this. Okay. So this is the battery with EMF V. This resistance is R1, this is R2, this is R3, this is R4. Okay. And here we connect a galvanometer, interestingly. Okay. So we are connecting a galvanometer here. Now let me just name this A, B, C, D. Okay. So now this battery will give some current I to the circuit, which will be divided in both the branches. This is I1, I2. Okay. Okay. So now we want an arrangement such that this current should also be equal to I1. This current should be equal to I2. So for such an arrangement, first of all, we require a variable resistance. The resistance variable होता है, which is called a rheostat. आपने सुना होगा. So we vary this resistance R3 in such a way that the current in this branch is equals to the current in this branch. ये दोनों current equal होना चाहिए. Okay. So this implies that the current in the galvanometer Ig, this is equals to 0. यहाँ पे हमारा current है. This is becoming equal to 0. ठीक है. So basically for null deflection, if there is no deflection in the galvanometer, the condition is that potential at point B should be equals to potential at point C. जब दोनों पॉइंट में पोटेंशियल सेम है, only at that time the galvanometer has no current. ठीक है. अगर पोटेंशियल थोड़ा भी चेंज होगा तो करंट हो जाएगा, राइट? As soon as there is some potential difference, there will be current. For null deflection, the condition is potential at B should be equal to potential at D. Important. So now I can write VAB equals to VAC. ऐसा लिख सकते हैं, right? So we know VAB equals to, this is I1 into R1, and VAC equals to I2 into R2. Right? तो एक इक्वेशन हो गया. Similarly, I can write VBD equals to VCD. VBD equals to VCD, which is equals I1 into R3 equals to I2 into R4.
So when I divide both these equations, I get the condition that R1 by R3 equals to R2 by R4. So this is very important. This is called condition for balanced Wheatstone bridge. Okay. R1 by R3 equals to R2 by R4. या इसी को लिख सकते हैं R1 by R2 equals to R3 by R4. Same thing. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, follow me, Riya, Avingshu. सर समझ में आ गया, पर सर व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? ये जो हमारा अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. जब रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड होते हैं एंड बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं या फिर कोई रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर आपको ऐसे, हाँ बोलिए रिया. नहीं सर, कुछ नहीं. ओके, सपोज आई हैव कनेक्शन लाइक दिस, जैसे इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं. यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर में बेसिकली रेजिस्टेंस ही होगा, है ना. सो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, आप पूछेंगे नाम क्यों दिया है, तो ढूंढना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, सो ये पहला चीज हो गया. ठीक है, डोंट वरी, आई विल शेयर द नोट्स, आप अच्छे से लिख सकते हैं. नाउ दिस इज एन व्हीटस्टोन ब्रिज व्हिच वी क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, है ना. सो नाउ इन प्रैक्टिकल लाइफ देयर इज आल्सो a व्हीटस्टोन ब्रिज that is called a meter bridge. ठीक है, मीटर मतलब 1 मीटर ब्रिज. ठीक है, बेसिकली दिस इज अ प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं. नाउ प्रैक्टिकल लैबोरेटरी जो भी. नाउ इन दिस व्हाट इज देयर, ये शायद मैंने उस दिन डिस्कस किया था. सो ऑब्जर्व दिस केयरफुली. सो हियर वी हैव अ रेजिस्टेंस and here we have another resistance. ठीक है, so these two resistances are connected with copper wires. तो ज़्यादा ज़्यादा सा कॉपर वायर रहता है. ठीक है, बेसिकली दिस कॉपर वायर्स आर वेरी थिक बिकॉज जब एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है. वी नो दैट R equal to rho L by A. So these are very thick copper wires. And ये दोनों वायर के बीच में एक और वायर लगाते हैं. ठीक है, so basically this is a another wire which has constant area and resistivity. ठीक है, तो we take another wire and we connect it between these two copper wires.
Now first thing to understand that because this copper wire is very thick, ये वाला जो wire है बहुत thick है, so that is why its resistance is almost zero. ठीक है, जहाँ भी आपको thick wire दिख रहा है उसका resistance zero. Now here we have an unknown resistance, इसका resistance हमको पता नहीं. ठीक है, and in place of this resistance we add a resistance box या rheostat. Simple. इसका resistance आ रहा है, so we add a resistance box. So ऐसा है. So, what you have written wire with constant AB. Constant area and then resistivity rho. Okay. आप लिख रहे हैं क्या अभी? अरे लिखो मैं थोड़ा. वो वायर भी कॉपर का है? नहीं वायर नॉर्मल है. ओके सर. ठीक है, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जनरली जीरो लेता है, ये कोई नॉर्मल वायर है तो इसलिए. सो नाउ व्हाट वी डू, वी वांट टू मेक इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट. तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग? अच्छा, पहले तो एक बैटरी लगाए, बैटरी दिखाई नहीं आपको. हियर यू कनेक्ट अ बैटरी, वी कनेक्ट अ की. ठीक है, so now okay, to make it a galvanometer arrangement basically we have to connect a galvanometer here. यहाँ एक galvanometer है, so we try to connect it at different points. तो basically आप देखेंगे यहाँ पे what the experiment is, we try to get the reading of galvanometer as zero. ठीक है, we try to get it zero. Okay, so ऐसा. सर हाँ बोलिए. सर यहाँ मतलब वो मतलब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग को कैसे मतलब जीरो में मतलब उसका रीडिंग को जीरो कैसे किया मतलब इधर जीरो किया नहीं, we try it like कभी पहले इधर हाँ, लगा मतलब के वो हाउ ही ट्राई मतलब मींस ट्राई टू कैलिब्रेट लाइक दैट कि वो मतलब जीरो हो इसमें. कैलिब्रेट नहीं, जैसे सपोज यहाँ पे डाला उसने, पहले गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट किया, सो गैल्वेनोमीटर एक साइड में फ्लिप होगा सपोज. हाँ बट सर यहाँ वायर तो सेम है मतलब नीचे जो वायर है पैरेलली जिसके साथ सेल कनेक्टेड है हाँ हाँ, वो वायर तो सेम है तो हम जिस भी पॉइंट में लगाएंगे वो तो सेम ही मतलब रीडिंग देगा. नहीं ये तो करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. सो बेसिकली सपोज मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, so यहाँ पे लेंथ एल होगा, हम्म. तो यहाँ पे 100 माइनस एल होगा. अच्छा हाँ टोटल इज 1 मीटर ना, तो 100 टोटल है. हाँ 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 100. 100 माइनस वो एल हो जाएगा. ठीक है. हाँ So, बट अच्छा तो ना बेसिकली जो रेजिस्टेंस है just 1 minute. Just a second. ओके, सो हाँ इसमें एक दो चीज़ मैं बताया नहीं अब तक. फर्स्ट ऑफ ऑल इस एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू कैलकुलेट एक्स. हमको पता नहीं एक्स का वैल्यू क्या है, वी वांट टू कैलकुलेट दैट. द सेकंड थिंग इज सर वो आरबी क्या है? आर यू मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स आप उसमें रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी डू, यू नो रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस रो एल बाई है ना.
So resistance of this part. तो कलर चेंज कर देते हैं. जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? दिस विल बी रो इनटू एल बाई ए. एंड जो बचा हुआ पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? दैट रेजिस्टेंस विल बी 100 minus L हाँ. by ठीक है. सो नाउ एज आई चेंज माय गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को मैं अगर यहाँ रखूँ तो क्या होगा? लेंथ कम हो गया, एल कम हो गया, 100 में सेल बढ़ जाएगा. सिमिलरली आई ट्राई टू गेट द गैल्वेनोमीटर एट डिफरेंट पॉइंट्स. सो जो रेजिस्टेंस Sir, का वैल्यू वेरी करेगा. हेलो हाँ बोलिए. सर, ये जो वायर है मतलब इसको क्या मतलब हम नॉर्मल लेंथ में उसको रखा जाता है या स्ट्रेच करके उसको मतलब इस मतलब सेटअप में बैठाया जाता है? मतलब नॉर्मल होता है, ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं होता. ठीक है. ये क्यों पूछ रहे बड़े क्वेश्चन? क्यों पूछ रहे? कुछ मीनिंग नहीं है इसका. ठीक है. सो अब अलग अलग पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर को टच करने की कोशिश करेंगे. एंड वन पॉइंट यू विल फाइंड वेयर द गैल्वेनोमीटर डज नॉट डिफ्लेक्ट. ठीक है. फॉर दैट कंडीशन आई कैन राइट x by r equals to this is l by 100 minus l. ऐसे लिख सकते हैं. केयरफुली देखें. ये समझ में आ गया ये वाला पॉइंट कैसे किया? यस सर. सो हाँ, वन थिंग इज यहाँ पे जो एल है इट इज इन सेंटीमीटर. थोड़ा ध्यान से. ओके. दिस लेंथ इज इन सेंटीमीटर. सो दिस इज कॉल्ड मीटर पिच. ठीक है. एंड इसमें एक टर्म जो मैंने डिफाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं. हियर वी हैव लैम्डा. लैम्डा मतलब दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. दिस इज कांस्टेंट. ठीक है. सो ये लैम्डा कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस पर यूनिट. 1 मीटर का रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा. तो जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर को टच करेंगे उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा. ठीक है. ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. इट इज क्लियर ओइशी? Sir, Yes. that X by R, हाँ. that R is of the resistance box. या Yes, sir. ठीक है. इट इज क्लियर. फॉलो मी हमेशा. Yes, sir. Okay. So this is the meter pitch. Now moving ahead. So ये एक था. So basically ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपके लैबोरेटरी में होंगे. ठीक है. Now next instrument which is study is potentiometer. ठीक है. So now what is the potentiometer? So all these different circuits or different instruments, they are based on one thing only, balance Wheatstone bridge. उस पे पूरा based है. But थोड़ा थोड़ा variation है. ठीक है. So now for a potentiometer we have a circuit like this. And try to make it nice. So it is a potentiometer. इसको थिक बना सकते थे.
अभी लिखो मत, लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। ओके, ये सिंपल थिंग्स बट यू हैव टू ग्रास्प इट। ग्रास्प नहीं किया तो भूल जाएंगे। सो ट्राई टू जस्ट फोकस व्हाट आई एम टेलिंग अगेन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सेटअप। ये पॉइंट है, पॉइंट बी, अगेन दिस इज अ वायर। से लास्ट केस में वायर था, ए बी के बीच में एक वायर है, and this is a battery which is connected. See. Now because this battery is connected, there is some current which is flowing through the circuit, which will be I. So this current I, this will be E by R plus the resistance of wire. This will be the current. Okay. E by smaller plus resistance of wire. So now carefully अब देखेंगे. Suppose I take any point here. C point. मान लो मेरा लेंथ L है. So the resistance of the wire, let this length be capital L. So the net resistance of the wire, this will be lambda times capital L. ऐसे होगा. Okay. Now if you see point between point A and C, the potential drop, this will be current I, तो इसमें current same current flow होगा. इसलिए current I into resistance of AC. Right. Now resistance between point A and C, this will be how much? This will be lambda into small l. ठीक है. So basically जो हमारा resistance across AC है, VAC, this is proportional to the length. जो भी लेंथ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. सो दैट इज वाई दिख रही कलर तो डार्क है. So that is why this potential drop is proportional to the length of observation. So this is called the principle of potentiometer. Principle of potentiometer. The potentiometer कैसे work करता है? It works on this principle. That potential drop across any two points, this is proportional to the length of the wire. ठीक है? ऐसा. Basically हमारा I into lambda constant होगा. This is also called potential gradient. Okay. ऐसा है. इसमें कोई डाउट है? ये समझ में आ गया सबको? फॉलो मी आयशी अविंशु. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो एक बार फिर से बता सकते हैं वो VAC के बाद VAC equals to I lambda L. अच्छा ये वाला पॉइंट क्लियर. VAC इक्वल्स टू VAC विल बी I into R, राइट? ये जगह I into RAC. ठीक है. और रेजिस्टेंस अक्रॉस AC कितना होगा? दिस विल बी लैम्डा into स्मॉल l. इसलिए लैम्डा क्या है? दिस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. मतलब 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है? तो L मीटर में कितना रेजिस्टेंस होगा? लैम्डा into L. जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था लैम्डा.
चार्ज पर यूनिट लेंथ ना. So we would write Q equals to lambda into L. Same concept is here also. ठीक है. Basically मेरा lambda होता है, this is charge per unit length. Similarly here our lambda is resistance per unit length. Per unit length. ठीक है, अभी clear है रिया? Yes, sir. Okay. This is the principle of potentiometer. Now this is the basic arrangement of a potentiometer. Using this, we are going to design more experiments. ठीक है. This is the most crucial part now. इसको एकदम ध्यान से देख सकते हैं. Yeah. Don't worry, I'll give time to read. बहुत important है. So now based on this potentiometer, we perform various experiments. अलग-अलग experiments करते हैं. So our first experiment is this is measuring potential difference with accuracy. Okay. So potential difference accuracy थोड़ा measure करना है. So how do we do? First of all, we have our entire arrangement like this. ठीक है. This is our potentiometer like this. ये हमारा वायर है. P K K. Okay. अच्छा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, वो तो दिखाएंगे. इसका ऐसे नहीं थोड़ा. Okay. Really current type flowing through this circuit. These are point A, B. Now हमको क्या करना है? Potential difference measure करना है. So what we do? We take a circuit across which we want to find out the potential difference. ठीक है. तो इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. And then to make it like a Wheatstone bridge. Wheatstone जिसमें नहीं बोल सकते. Basically again we take a galvanometer and we try to find out the point of null deflection. ठीक है. अलग-अलग पॉइंट पे उसको हम लोग टच करके देखते हैं. And we try to find out the point of null deflection. ठीक है. ऐसा है. So when there is null deflection, that times the current through the galvanometer, this will be equal to 0. है ना? That means the potential drop across AC, जितना potential drop across AC है, because यहाँ तो कोई current flow नहीं हो रहा है इस circuit में, तो जो A और C के बीच में potential difference है, same is the potential difference between the box. That means this will be the potential difference B.
So now V will be equals to I lambda into L. तो हमको लेंथ पता है L. We know the current I also. So we are able to find out the potential across this block. ठीक है, ऐसे करते हैं. All right. सर बोलिए. सर आप मतलब समझा सकते हैं कि क्यों मतलब वोल्ट मीटर से पोटेंशियोमीटर में ज्यादा एक्यूरेसी है? वोल्टमीटर से पोटेंशियोमीटर में ज्यादा क्या एक्यूरेसी है? वेरी गुड. एक चीज है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो आइडियल नहीं होता है, उसका रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट नहीं रहता है ना. सो ड्यू टू दैट देयर इज करंट इन द वोल्ट मीटर. ठीक है, वोल्ट मीटर में कुछ करंट रहेगा हमेशा. तो जैसे ही वोल्ट मीटर में करंट फ्लो होना शुरू करता है दैट मीन्स व्हाट, जो हमारा वेजेड वैल्यू वाला इट इज नॉट प्रॉपर, परफेक्ट नहीं है ना, बिकॉज सम करंट इज ड्रॉन बाय द वोल्ट मीटर जो मेरे रेजिस्टेंस के थ्रू जाना चाहिए था. बट इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर द करंट थ्रू द वोल्ट मीटर जिसके अक्रॉस करंट निकाल रहे हैं वही जीरो है. सो ड्यू टू दिस फैक्ट दिस इज मोर एक्यूरेट देन द वोल्ट मीटर बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है, ओके अंशु. ठीक है सर. ओके, बाकी लोग समझ में आ गया? अमीशा, आयुषी, yes, Ayushi, is this clear? Yes, sir. Okay, so the first experiment. Now second experiment is similar to this. So in this experiment we want to measure the EMF. Experiment number 2. In this we want to measure the EMF. Okay. Now again we have to make the entire diagram. For the patience here. So the potentiometer will be like this. Across which a wire will be connected. And this E, this R. ये और एक की होगा. ठीक है. So now what we do? इस केस में हमको EMF मेजर करना है कोई दूसरे बैटरी का. So what we do first? We take that battery and we connect it like this. Resistance R, this EMF E dash. And then we connect it like this. So again we try to find the point of null deflection. ठीक है. So यहाँ पे हम लोग null deflection का point find करते हैं. Okay. So because again इसमें null deflection हमको मिल गया. So for this cell E dash के E1 लिख दो इसको. So you can write E1 equals to I lambda into L1. ठीक है. So this is first equation. ये एक बैटरी का EMF मिल गया एक सेल के लिए.
Now what we do, we take another cell which is known to us. ये first वाला unknown है. So for this we find out the length L1. So we get E1 as I lambda into L1. Now we take a known cell, known battery. And for that we find out E2. This is I lambda into L2. ठीक है. You are on known battery, a known cell. So when we take the ratio of both of them, we get E1 by E2 equals to L1 by L2. So in this way, we can find out the EMF of the battery. So we know E2, we know L1, we know L2. Thus we can find out E1. ठीक है. Sir, what is the E2? Means what electromotive force of which battery cell? एक दूसरा सेल हम फिर से कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे पहले E1 कनेक्ट किया था. तो सेकंड टाइम हम लोग दूसरा सेल कनेक्ट करेंगे E2. उसके लिए लेंथ फाइंड करेंगे. ठीक है. तो फिर सर मतलब जो एक्चुअल मतलब हमें निकालना कौन सा वाला? E1 निकालना है. Okay. हमको E2 पता है, L1 पता है, L2 पता है. So you can find it. Okay. So again, this is a simple experiment in which we measure the EMF. Okay. Now we can measure the same EMF using another method. ये थोड़ा ज्यादा कॉमन है. This is experiment 3. We measure EMF with sum and difference method. ठीक है. So again फिर से पूरा डायग्राम बना सकते हैं. But I'll just draw the wire. ठीक है. So this is the wire. ये point A, B. So in first case, what we do? We take the batteries and connected them in series. Series में connect करते हैं इनको. इसका EMF E1 resistance R1. इसका EMF E2 resistance R2. And we take another galvanometer. इसे current we find out a null diffraction again. So we'll get some length L1. ठीक है. So thus we can write here. क्या लिख सकते हैं हम लोग? We can write E1 plus E2 equals to I lambda into L1. So basically this is like a sum. Both of them are connected in series in the same direction. Now we can revert one of the batteries. So एक battery को हम लोग उल्टा कर देते हैं. So we'll get E1 minus E2 this will be I lambda into L2. ऐसे होगा. Because the batteries are reversed now, the length भी change होएगा because EMF will change. So you can write. तो basically दोनों को divide कर सकते हैं and you can do component dividend. So you'll get E1 by E2 equals to L1 plus L2 by L1 minus L2. ठीक है. So this is called a sum. हाँ बोले. ऊपर वाले केस में हम लोग E1 को हम लोग I lambda L1 लिए थे, तो इस केस में E1 plus E2 को I lambda L1. Yes. Good done. So what we are doing here, यहाँ पे हमारा circuit अलग है ना. Here we are connecting both of them in series.
तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 होगा। यस रिया, ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है हमने, दैट इज व्हाई इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2। ओके, ऐसा है। दिस इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, जगह हुए हैं ना सब लोग? आई थिंक सब अच्छे बच्चे हैं, कोई सोता नहीं क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड था। इसलिए बीच से क्वेश्चन पूछते रहते हैं हम, ताकि कोई सोए ना। फिर भी कुछ लोग तो सो जाते होंगे, है ना? एक्चुअली लाइव क्लास पे सोते तो ऑनलाइन में तो हाई चांसेस है सोने के, पर ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है चलो, सो फोर्थ एक्सपेरिमेंट ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हियर वी आर मेजरिंग द internal resistance of a battery. So this question is very common in CBSE state board also. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्रूफ करने के लिए या फिर डिराइव करने के लिए। ठीक है, CBSE। ओके, तो अगेन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये दिस इज लिटिल डिफरेंट सेटअप। सो we have a battery like this, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसमें K है K, ठीक है, दिस इज EMF is E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, यहाँ पे की रहेगा, उसको हम बोलेंगे K1। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देखें। And we have another circuit here, ये point A, ये B। अभी थोड़ा सा देख सकते, so circuit which is coming out, it is something like this। ये हमारा sort of battery है, battery with internal resistance। and ये external battery है। even sorry, external resistance, this is external resistance। and then we connect this entire system using a galvanometer again। ठीक है, and we connect it to the battery, connect it to the wire at certain point C। तो यहाँ पे एक चीज, we insert another key here। this is key K2। okay, so now
First, what we do? K1 is closed and K2 is open. This is first case. K1 is closed, K2 is open. ठीक है. तो क्या होगा basically? Because this K2 is open, this is open. So only we have these two. तो जो भी current है, hopefully यहाँ से flow है. It should flow like this. But we find the point of null deflection. तो हमारा IG 0 है. So we get E1 equals to I lambda into Ln. We get a certain length for which we get T. Okay. As done in second experiment. Same thing. Okay. So ऐसा हो गया. Now what we do? Second case में K1 and K2 both are closed. ठीक है. K1 and K2 both are closed. So now because both of these keys are closed, now इस circuit में कुछ current flow होगा. Carefully observe करेंगे तो in this circuit also there is some current flowing. Okay. So now we'll have another balance point. C के अगर C dash हो जाएगा. Balance point will change. Okay. So again we try to find out the null deflection. So null deflection है तो हमारा galvanometer current 0. ठीक है. So we'll get I lambda into L2. Now this will be equals to potential drop across P and Q. ये तो हो गए because यहाँ कोई current flow नहीं हो रहा है इस circuit में. So this will be E1 minus I1 into R1. ठीक है. So this is our first equation. ये थोड़ा second equation. So if you solve 1 and 2, we get our internal resistance R equals to capital R into L by L2. Yeah, L by L dash minus L2 या L dash लगा बस. So again, this is an important formula. Sir, where you got that मतलब relation of that capital R resistance? Why we got? Sir, from where you got that relation of capital R resistance? Means equation 1 और equation 2 में तो मतलब R का तो कोई ये नहीं है. सोचो. सोच सकते हैं. कि करंट I1 कैसे निकालेंगे? नहीं R कैसा है मतलब वही कैपिटल R तो. का रिलेशन. For that I1 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना. अच्छा ठीक. I1 will be E1 by small r plus capital R. ठीक है. अब इसको खुद से डिराइव करो एक्चुअली.
बेटर रहेगा, बिकॉज अब एक बार डिराइव करेंगे तो अब एग्जाम में भी करके आ जाएंगे. सो फ्रॉम 1 to 2 एक्चुअली यू शुड शो हाउ टू गेट टू दिस फाइनल आंसर. आपके नोटबुक में इसको शो करना होगा. ठीक है. दिस इज अ वेरी वेरी हाईली लाइकली क्वेश्चन जो आ सकता है. ठीक है. सर आप मतलब इसके पहले वाले पेज में थोड़ा जा सकते हैं? ये पहले इसमें कोई डाउट है किसी को? रिया, अमीशा, नो वैसे सर. अच्छे से सब क्लियर है पूरा? हाँ सर. Yes. ओके. तो ये लोग लिख सकते हैं एक्चुअली. अभी लिखेंगे तो अच्छा है. यू कैन राइट डाउन और आई कैन शेयर, लाइक मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ. आप क्लास के बाद भी लिख सकते हैं. सर आप शेयर कर दीजिए. ओके. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. कुछ लिख लेंगे. ओके. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स. सो मेनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट आल्सो, मेंस में, नीट में. ठीक है. बट हमेशा उतना, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मोड में नहीं रहना चाहिए. वी शुड बी इन द मोड ऑफ लर्निंग. जो भी कंसेप्ट्स है, व्हाटएवर इज देयर इन फिजिक्स, जो सिलेबस में, वी शुड बी इन द मोड ऑफ लर्निंग. कैसे दिया हुआ है, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हो रहा है, देन दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल. उससे आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा. जहाँ भी आपका कंसेप्ट अच्छा है तो यू कैन डू वेल इन एनी एग्जाम, बीट बोर्ड एग्जाम, मेंस, एडवांस, नीट. बेसिक कंसेप्ट एंड फंडामेंटल्स शुड बी स्ट्रांग. वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो ये सब था. तो दिस एंड्स आवर चैप्टर फाइनली. करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया, 3rd चैप्टर. ओके. सर आप व्हीटस्टोन ब्रिज का वो सेकंड लास्ट केस में जा सकते सेकंड लास्ट केस. हैं? सॉरी व्हीटस्टोन नहीं, मतलब वो पोटेंशियोमीटर. हाँ, वो एक्सपेरिमेंट 1. 1 में. सॉरी 3. हाँ सर, यह मतलब जो वायर ए बी है उसके साथ पैरेलली और एक तो मतलब पावर सोर्स की हम ऐड नहीं. अरे नहीं है, वो मैं दिखाया नहीं, बस होगा सब यहाँ पे. हर बार आ रहा है तो ड्रॉ नहीं कर सकते. हो गया यहाँ पे. ठीक है. ओके. तो एक्चुअली इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स हैव नथिंग, कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर. ठीक है. सो मोस्ट कॉमनली जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बिकॉज अदर अरेंजमेंट्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है. यू शुड डू दिस, अच्छे से करना चाहिए आपको. सीबीएसई में क्वेश्चन काफी हाईली लाइकली है, तो कर सकते हैं. ये एक चीज था. और क्या मेजरिंग पोटेंशियल विद एक्यूरेसी. सो नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसको नोट कर सकते हैं, सेंड शेयर द नोट्स एंड दिस एंड्स आवर चैप्टर फाइनली. ठीक है. तो आपको होमवर्क क्या क्या है पहले बता दिया था. फर्स्ट इज यू हैव टू सॉल्व एचसी वर्मा. ठीक है. एचसी वर्मा करना थर्सडे तक ट्राई करो खत्म करने का. देन उसके बाद आई विल गिव असाइनमेंट फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. अभी क्लास होने के बाद आई विल अपलोड, सो यू कैन सॉल्व दैट असाइनमेंट आल्सो. ओके. ठीक है. सर सबमिशन डेट, मतलब वो असाइनमेंट को कब सबमिट करना है? देखो एचसी वर्मा का तो बताया था, दिस इज थर्सडे तक करना है. नहीं, आप जो, अच्छा एंड एचसी वर्मा में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, ये थर्सडे तक करना है. Sir, And there are 3 chapters. 3 मतलब? HC वर्मा में 3 chapters है, मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन. एक फील्ड लाइन चार्जेस है, दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल वाला एक होगा.
हाँ फील्ड है, पोटेंशियल है, फिर एक हाँ गॉस लॉ के ऊपर एक चैप्टर है और फिर एक कैपेसिटेंस के ऊपर, कैपेसिटर्स के ऊपर। अभी तक कर पाएंगे आप लोग इतना? हो जाएगा ना? नहीं होगा? ठीक है, इसको फ्राइडे कर दो चलो। चार एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं, हो जाएगा ना? ठीक है, एक्चुअली एचसीआर में थोड़ा आराम से ही करना चाहिए, जबरदस्ती करेंगे तो आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। So what you do, you take small targets. First what you can do, instead of having 4 chapters, first is for electrostatics, जो 2 chapters है उसके, fields and potential. This you do by Thursday. ठीक है? सर ये शायद एक ही चैप्टर है। Field and potential एक ही है, कैसे करोगे? Electric field and charges and field एक chapter है, then potential का एक chapter होगा। एक बार हम देख ही लेते हैं। Are you sure एक ही chapter है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक ही चैप्टर है। नहीं, charges and fields, ठीक है जो भी है, 2 चैप्टर है ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पीछे ही पड़ जाता है। 2 चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये की है, एक फोर्स से सर रिलेटेड होगा। हाँ बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक चैप्टर है और गॉसेस लॉ एक चैप्टर है। वो ओह, चार्जेस वाला चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, हम देख ही लेते हैं, इतनी देर से हम खोले नहीं अच्छे में। जस्ट चेक करो। बेसिकली यार 3 चैप्टर्स, ये बोल रहे कैपेसिटेंस तक 3 चैप्टर है। यस सर। हाँ, Sir, is the classes over? पहले आप ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फील्ड एंड पोटेंशियल का चैप्टर कर लो पहले, ये डू इट थर्सडे, बाकी मैं बताता हूँ। एंड जो वो करंट का असाइनमेंट है, दिस यू टू ट्राई टू डू बाय सैटरडे। इसलिए एचसीओ में पहले करना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा लेट बताया तो थोड़ा लेट हो गया। छः दो सबमिशन डेट है, ठीक है? ओके रिया, Sir, we have to do the submission in Google Classroom. या ठीक है, ओके। और कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना है? Sir, आप और कुछ मतलब पढ़ाएंगे या मतलब क्लास ओवर हो गया? क्लास ओवर ही हो रहा है ऑलमोस्ट। Okay. So Yes, I can leave now. Means ठीक है जैसे। तो कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना चाहते हैं? सर टेस्ट के बारे में पूछना था, वो क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस बार सैटरडे करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा संडे? हाँ, इस बार टेस्ट लेंगे क्योंकि लास्ट वीक नहीं दिए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे टेस्ट लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है। और क्या है, एडवांस के लेवल करना है टेस्ट? नो सर। नो की यस बोला? यस बोला ना? एक दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, डर जाते बच्चे। ठीक है, मेरा जो भी मॉडरेट लेवल का टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, सो I think I end the class here. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर